So we are doing this rotation right now, and yesterday we did torque and questions where torque about a point, torque about an axis, couple of force. So these were the things which we did in the last class. So आज हम लोग equilibrium of a rigid body से start करेंगे. So equilibrium of a rigid body, we can say rigid body is in equilibrium when it is in translational equilibrium, rotational equilibrium, right? So दोनों equilibrium होना चाहिए, translational equilibrium भी होना चाहिए, rotational equilibrium भी होना चाहिए. Translational equilibrium कैसे मिलता है? When the sum of all the forces acting on an object is equal to zero, then we say that the object is in translational equilibrium. So generally we find two components of this net force, one along x-axis and other along y-axis, and then we see that summation of all the forces along x-axis. So F net along x-axis is zero and F net along y-axis is zero. For rotational equilibrium, all the net torque should be equal to zero. Summation of all the torques acting on the object is should be equal to zero. So torque about any point, if it is zero, then we say that the body is in rotational equilibrium. If net force on a body is zero, then net torque of the forces may or may not be zero, right? तो कोई जरूरी नहीं है कि net torque zero हो अगर net force zero होता है तो, right? For example, a pair of forces, each of same magnitude and acting in opposite direction on the rod, यहाँ पे आप देखोगे कि नेट फोर्स जीरो है, बट ये नेट टॉर्क जीरो होने के लिए ये जो है सेंटर पॉइंट के अबाउट जो है यहाँ पे रोटेट करना चाहिए. अगर सेंटर पॉइंट के अबाउट नहीं किसी और पॉइंट के अबाउट होगा तब नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा उस पॉइंट में. So if net torque on a body is zero, net force on it may not be zero. Similarly, कि when the net torque is zero, so अगर यहाँ पे देखते हैं तो net torque zero है क्योंकि इस point के about line of action of force passes through the axis of rotation. So that's why here net torque will be zero, but net force is not zero. Net force will be 2f minus of f, that is capital F. So net force is not zero, but right. So here, if you see, the torque is added in both the sides, right? So यहाँ पे net force zero, but net torque zero नहीं है. Net torque is 2FL, and similarly यहाँ पे net torque zero है, but net force zero नहीं है. So if net force on the body is zero, then torque of the forces about each and every point is same. So if net force on the body is zero, then torque of the forces about each and every point is same. So torque about B, right? यहाँ पे जैसे torque about B F into L और F into L, 2FL हो गया. Torque about C निकालना होगा, so F into 2L करोगे तो भी 2FL ही होगा. So torque about every point is same. ठीक. Now if you see this example, so uniform rod of length L and mass M is hung from two strings of equal length from a ceiling as shown in the figure. Determine the tension in the strings. तो मान लीजिए A पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन कुछ TA है, इसमें टेंशन TB है. सो हमें टेंशन इन स्ट्रिंग A एंड टेंशन इन स्ट्रिंग B निकालना है. इसका जो सेंटर होगा यहाँ पे इसका वेट लगेगा mg, राइट? और इसका जो डिस्टेंस यहाँ से इस कॉर्नर से होगा, दिस इज L/2, राइट? नाउ फॉर when this object is at rest, तो यहाँ पे जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दोनों ही होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा यहाँ पे. सो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम,
Now since rod is in equilibrium, for translational equilibrium, we have TA plus TB is equal to mg. This is your first equation. And for rotational equilibrium, अबाउट ए, किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं हम लोग, ए पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम लिखते हैं। टी ए की वजह से तो कोई भी टॉर्क नहीं होगा क्योंकि ए से ही पास कर रहा है। एम जी जो है इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है और टी बी जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम वी गेट, so for rotational equilibrium about A, we have mg into L by 2 is equal to TB into 3L by 4। ठीक है, सो इससे हमारा जो ये L and L gets cancelled, 2 2s are 4, so TB is equal to 2 mg upon 3, ये second equation। so TA will be equal to mg minus TB, mg minus 2 mg by 3, so this is mg by 3। so this is the tensions which was required here, TA and TB। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now let's go to the next one. Betsy, you wanted to ask some doubt. So this is regarding the question which you are doing or the question which was asked in exam? So which was asked in exam. Which question do you have doubt in? You can send me the numbers of the questions, okay? We can discuss it tomorrow. Okay. Just Okay, send me a WhatsApp message or you can send it on the chat only right now. Okay. So a stationary uniform rod of mass M, length L. So the rod has length L, the total length, and the mass of this rod is M, so the weight will be mg here, against a smooth vertical wall making an angle theta with rough horizontal flow। तो ये वाला एंड स्मूथ है, मतलब यहाँ पे जो एज है ये स्मूथ है और ये रफ है। ये सरफेस स्मूथ है तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, जो रफ सरफेस है वहां पे फ्रिक्शन होगा। Find the normal force and frictional force that is exerted by the floor on the rod। So normal force is this, right, N, and because it will have a tendency to go in this direction, the friction will act in this direction, right? So friction F is in this direction, so we have to find both normal force and friction force। अगर अब हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें, ठीक है, सो अब mg के तो दो कंपोनेंट्स होंगे, वन इज, सो यहाँ उसको कंपोनेंट नहीं निकालते हैं। So for rod to be in equilibrium,
तो स्टेशनरी यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब रॉड इक्विलिब्रियम में. फॉर रॉड टू बी in equilibrium, summation of all the force should be 0 and summation of all the torque should also be 0, है ना. रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दोनों होना चाहिए. तो अब अगर हम लोग बात करते हैं N2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये एक नॉर्मल रिएक्शन N1 मान लो और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन मान लो N2. ठीक है. सो यहाँ पे N2 इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स F हो जाएगा. ठीक है. सो N2 इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स F एंड N1 इज इक्वल टू mg. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा. ठीक है. हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल डायरेक्शन में N1 mg के बराबर होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में N2 जो है ये F के बराबर होगा. ठीक है. अब अगर हम लोग टॉर्क देखें, so torque about any point so ये थीटा है. तो मान लो इस पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क निकाल रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट. ठीक है. ये जो L है, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, और दूसरा ये जो डिस्टेंस है ये निकाल लेते हैं. ठीक है. और ये निकाल लेते हैं. सो दिस इज L/2, this will be L/2 cos theta, right, and this is L/2 sin theta. So this is L/2 cos theta and this is equal to L cos theta. And the distance from this point to this point is L cos theta and this is L/2 cos theta. So perpendicular distance, force into perpendicular distance, line of action of force से जो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसको एक्सटेंड कर दोगे यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो हम लोग को टॉर्क देता है ए पॉइंट के अबाउट. सो टॉर्क अबाउट ए हैज टू बी इक्वल टू 0. सो दिस मीन्स mg इंटू L/2 cos थीटा इज इक्वल टू, राइट, ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है और ये जो फ्रिक्शन है ये भी इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, प्लस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स F, ये इस डायरेक्शन में है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से ये हो जाएगा L sin थीटा. सो F इंटू L sin थीटा इज इक्वल टू, ये N1 जो है इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, mg और F इसको एंटी क्लॉकवाइज और N1 इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, mg और F इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा. सो दिस इज इक्वल टू, जो मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दैट इज N1 इंटू L cos थीटा. सो N2 का वैल्यू F के बराबर है, N1 का वैल्यू mg के बराबर है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. सो mg L/2 cos थीटा plus F into L sin theta is N1, means mg into L cos theta. So L का वैल्यू हम लोग, ठीक है, L का वैल्यू हम लोग कैंसिल कर देते हैं. Now mg cos theta by 2 is equal to plus of F sin theta is equal to mg cos theta. Bring it on the right side, mg cos theta minus mg cos theta by 2. So F sin theta is mg cos theta by 2. So this will give us, हम लोगों को नॉर्मल फोर्स और ये F निकालना है, तो F इज इक्वल टू mg cos by sin is cot theta, mg cot theta by 2. This is our friction force.
और अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन N1 निकालना है, नॉर्मल फोर्स N1 विल बी इक्वल टू, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, N1 इज इक्वल टू mg है ना, वो तो हम लोगों ने निकाल ही लिया है. So this is our friction force and this is the normal reaction. Clear है बच्चों? Yes, sir. Now in this question, the ladder shown in figure has negligible mass and rests on a frictionless floor. The crossbar connects the two legs of the ladder at the middle. है ना? तो यहाँ पे क्रॉस बार को मिडिल में ये एक वायर है जो ज्वाइन करके रखे हुए क्रॉस बार. Connects the two legs of the ladder at the middle. The angle between the two legs is 60 degree. है ना? This angle is equal to 60 degree. The fat person sitting on the ladder has a mass of 80 kg. This person, इसका mass 80 kg है. Angle between the two legs is 60 degree. Now, find the contact force exerted by the floor on each leg and the tension in the crossbar. तो कॉन्टैक्ट फोर्स ईच लेग पे यहाँ पे निकालना है और टेंशन इन द क्रॉस बार यहाँ पे निकालना है. ठीक है, तो इसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, सो ये देखो यहाँ से इसका डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर. यहाँ से जो टॉप से जो इसका डिस्टेंस है वो 2 मीटर है. राइट, अब यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. नेग्लिजिबल मास एंड रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर. कोई फ्रिक्शन नहीं है. राइट, ये टेंशन T इधर है, नॉर्मल रिएक्शन N है. राइट, सो और यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन N है और एक mg नीचे की तरफ है. सो N प्लस N इज इक्वल टू mg. 2n is equal to 80 into 9.8. So this will be equal to 784. So n is equal to 784 divided by 2. This is equal to 392 Newton. Now, अब देखिए ये एंगल जो है, दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है ना, और ये टोटल हाइट जो दे रखा है वो 2 मीटर दे रखा है ना. सो दिस इज 2 मीटर and this angle is 30 degree. So this angle will also be 30 degree. We have to find this. मान लो ये x है, so x by 2 is tan 30. So x is equal to 2 tan 30. 2 into 1 by root 3. 2 by root 3 हो गया. ठीक है, तो mg into x जो रोटेशनल टॉर्क प्रोवाइड हो रहा है ना इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग लिखेंगे, सो दिस इज इक्वल टू ये टी फोर्स यहाँ से पास कर रहा है और mg फोर्स इधर से पास कर रहा है.
सो इस पॉइंट के अबाउट इस वाले लेग का इक्विलिब्रियम हम लोग देख रहे हैं. सो यहाँ पे mg इंटू, और ये जो n है ये तो इसी पॉइंट से पास ही कर रहा है. तो मान लीजिए ए पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क लिख रहे हैं. सो नेट टॉर्क about A. So this will be mg into 2 by root 3. mg into 2 by root 3 is equal to, ये देखिए ये इसको mg जो फोर्स है ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहेगा, और ये जो है ये भी इसको इस पॉइंट के अबाउट into 2 meter. mg into 2 by root 3 is equal to, इस पॉइंट के अबाउट हम लोग कर रहे हैं. ये डिस्टेंस इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखते हैं, सो ये n इंटू एक्स हम लोग पहले कर लेते हैं. सो n इंटू एक्स, और ये जो है ये इसको इधर रोटेट कराना चाहेगा इस पॉइंट के अबाउट n, और ये इसको इधर रोटेट कराना चाहेगा. तो n इंटू एक्स इज इक्वल टू टेंशन t इंटू 1 मीटर. So n is calculated as 392 into 2 by root 3 is equal to t. So t is equal to, so we are not about A, we are calculating it about B, let's say. So t is equal to 392 into 2 divided by root 3. So this will be equal to 392 into 2 divided by root 3. So 452.6 Newton. This is the value of the tension which is being acted upon on this. ये टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे. So you might have seen in your practical life that if a force F is applied to a block A of smaller width, it is more likely to topple down before sliding. तो मतलब अगर एक पतली सी ब्लॉक रखी हुई है और यहाँ पे आप फोर्स F लगा रहे हो, तो इसका मोर लाइकली ये है कि फोर्स यहाँ पे लगाने की वजह से ये टॉपल कर जाए, मतलब गिर जाए इधर, है ना, यहाँ पे ऐसे गिर जाएगा, rather than ये इसके ऊपर स्लाइड करे. So applied to block A of smaller weight, it is more likely, right? It is more likely to topple down before sliding, while if the same force F is applied to another block B of broader base, chances of its sliding are more compared to its toppling. But यही अगर एक ब्रॉडर बेस पे, मतलब इस तरह से कोई रखा हुआ और यहाँ पे आप फोर्स लगाओगे, तो इसका टेंडेंसी स्लाइड करने का ज्यादा पॉसिबल है. ठीक है, तो ब्रॉडर बेस के अबाउट अगर हम
लगाते हैं फोर्स तो स्लाइड करने के चांसेस ज्यादा होती हैं टॉपलिंग से. To understand it better, let us take an example. Suppose a force F is applied to a height B above the base A of the block. ठीक है, तो let's say ये हम लोग एक फोर्स F लगा रहे हैं अप्लाइड एट ए हाइट B. ये B हाइट पे हम लोग लगा रहे हैं, ये बेस AE से B हाइट पे. Now further suppose the friction F is applied to prevent sliding. है ना, friction F is applied to prevent sliding. In this case the normal reaction N also passes through C. है ना, center of mass mg इधर लग रहा है, center of mass से normal reaction. So N also pass through C, then despite the fact that block is in translational equilibrium, है ना, N mg के बराबर होगा और कैपिटल F स्मॉल f के बराबर होगा. F इज इक्वल टू F एंड N इज इक्वल टू mg. एन अनबैलेंस्ड टॉर्क ड्यू टू कपल ऑफ फोर्स F एंड F इज हियर. है ना, एक अनबैलेंस्ड टॉर्क है, इसका लाइन ऑफ एक्शन और इसके लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, स्मॉल f कैपिटल F, और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो b का है. तो ऐसा एंटी पैरेलल फोर्स जब लग रहा होता है एक डिस्टेंस पे, तब उसको हम लोग कपल कहते हैं. तो एक कपल ऑफ फोर्स इज बीइंग एक्टेड अपॉन, जिसके वजह से इसमें एक रोटेशनल टेंडेंसी आएगा, राइट. सो दिस टॉर्क एज अ टेंडेंसी हैज अ टेंडेंसी टू टॉपल द ब्लॉक अबाउट पॉइंट E. किस पॉइंट के अबाउट टॉपल होगा, इस पॉइंट के अबाउट. अगर हम लोग ऊपर से ऐसे फोर्स लगाएंगे तो इसका टेंडेंसी ऐसे आगे की तरफ गिरने का होगा, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करके, इस पॉइंट के अबाउट, E पॉइंट के अबाउट. So to cancel the effect, just a second. So to cancel the effect of this unbalanced torque, the normal reaction N is shifted towards right at a distance A. ठीक है, तो ये जो नॉर्मल, इसको कैंसिल करने के लिए, बेसिकली इस इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन क्या है, शिफ्ट कर जाता है इधर की तरफ, राइट की तरफ. सो नॉर्मल रिएक्शन N इज शिफ्टेड towards right at distance A such that net anti-clockwise torque is equal to net clockwise torque. मतलब कि ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क है, अगर हम लोग E पॉइंट के अबाउट देखते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा, F इंटू बी होगा. अब ये नॉर्मल रिएक्शन कुछ इधर शिफ्ट कर गया है ना, कितने डिस्टेंस से शिफ्ट किया, A डिस्टेंस से शिफ्ट कर गया, जिससे इसके वजह से जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा N इंटू ए, वो F इंटू बी के बराबर हो जाए. F इंटू बी इज इक्वल टू N इंटू ए. N किसके बराबर है, mg के बराबर है. तो N इज इक्वल टू mg है, तो FB इज इक्वल टू mg इंटू ए. हम लोग को शिफ्ट कितना करना पड़ेगा, इसको नॉर्मल रिएक्शन को A डिस्टेंस से, मतलब FB डिवाइडेड बाय mg इस डिस्टेंस से शिफ्ट करना पड़ेगा. नाउ F और B आर, एज F और B आर इंक्रीज, या तो फोर्स इंक्रीज करो या B को इंक्रीज करो, डिस्टेंस A ऑल्सो इंक्रीजेस. A इज इक्वल टू F इंटू बी बाय mg है. अगर तुम या तो F इंक्रीज करोगे या B इंक्रीज करोगे, तुम्हारा A क्या होगा, इंक्रीज करेगा. So in extreme case beyond which block will topple down, the normal reaction passes through E. भाई अगर एक्सट्रीम केस क्या होगा, ये पूरा नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट के अबाउट ही पास कर जाए. इससे ज्यादा तो ए का वैल्यू हो नहीं सकता है. ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे ये वाला वैल्यू हो सकता है, राइट. तो ए का मैक्सिमम वैल्यू इसके ये डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा. So in extreme case beyond which the block will topple down, the normal reaction passes through E. Now if F or B are further increased, the block will topple down. Further increase कर दोगे तो block topple कर जाएगा. This is why the block having the broader base has less chance of toppling in comparison to a block of smaller base, because the block of larger base has more margin for the normal reaction to shift. जितना बेस चौड़ा होगा, नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा शिफ्ट कर पाएगा और उतना ज्यादा उसको बैलेंस कर पाएगा, फोर्स को, टॉर्क को, जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको बैलेंस कर पाएगा. क्लियर बच्चों? Now in this question, a uniform block of height h and width a, तो ब्लॉक का हाइट h है
और पूरा विड्थ इसका a है, ठीक है। तो हाइट h and width a is placed on a rough inclined plane and the inclination of the plane to the horizontal is gradually increased. तो थीटा को हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं. इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, then under condition, then under what condition the block will slide before toppling and topple before sliding. तो दो कंडीशन निकालना है. पहले केस में स्लाइड करेगा टॉपल करने के पहले, है ना. तो मतलब जो यहाँ पे फर्स्ट केस हम लोग स्लाइड बिफोर टॉपलिंग ले रहे हैं. सो mg का दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा है और इस डायरेक्शन में mg कॉस थीटा है. इसका देखो, इसका टॉपल किधर करने का कोशिश करेगा, ये इधर टॉपल करने का कोशिश करेगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा. कितने से शिफ्ट हुआ, x डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ, जिससे कि ये इस पे ये क्लॉकवाइज टॉर्क लगा सके. यहाँ पे mg साइन थीटा जो है इस पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है, ठीक है. सो स्लाइड बिफोर टॉपलिंग, ब्लॉक स्लाइड कब करेगा, सो ब्लॉक will slide when for the block to slide mg sin theta will be greater than f, तब slide करेगा. So mg sin theta has to be greater than mu mg cos theta. mg cancel हो गया, tan theta is greater than mu, ठीक है. ये हो गया फर्स्ट कंडीशन. And the block is at rest if tan theta is less than equal to mu. तब तक रेस्ट पे रहेगा. जहां tan theta mu से ज्यादा हुआ वो मूव करने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा. अब दूसरा केस, टॉपल बिफोर स्लाइडिंग. तो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये अगर हम लोग ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क अबाउट ओ देखते हैं, टॉर्क अबाउट ओ अगर देखेंगे तो F इंटू एच बाई टू हो जाएगा, F इंटू एच बाई टू. एंड ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना, और n इंटू एक्स इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है. F इंटू एच बाई टू इज इक्वल टू n इंटू एक्स. So as block is not sliding, now since block is not sliding, we have F is equal to mg sin theta. F is equal to mg sin theta हो गया, और n is equal to mg cos theta हो गया. इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इससे क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन. सेकंड और थर्ड का वैल्यू, f और n का वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं. फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों को कंबाइन कर दें तो f इंटू एच बाई टू, मतलब mg साइन थीटा इंटू एच बाई टू इज इक्वल टू mg cos थीटा इंटू एक्स, ठीक है. सो x इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एच बाई टू. x इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एच बाई टू है.
अब मैक्सिमम वैल्यू x का क्या हो सकता है, a/2. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a/2. सो ये हमारा so to prevent toppling x should be less than equal to a/2, right? So x should be less than equal to a/2 or tan theta into h/2 should be less than equal to a/2. So that means tan theta is less than equal to a/h. So to slide before toppling, tan theta should be greater than mu. To topple before sliding, tan theta should be less than equal to. So sorry, to prevent toppling, tan theta is less than equal to a/h. हम लोग को तो topple कराना है before sliding, तो tan theta. So for block to topple, before sliding, है ना. तो अगर टॉपल करना है बिफोर स्लाइडिंग, तो अब ये इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन बी है ना. स्लाइड करने के लिए tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू, है ना. और टॉपल करने के लिए प्रिवेंट टॉपलिंग ये है, तो टू टॉपल tan थीटा शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू a/h. सो tan theta should be greater and equal to a/h, और tan theta क्या है, greater than mu है, right? So that means mu should be greater and equal to a/h. So this is the relation for the block to topple before sliding. Clear है बच्चों? Yes, sir. Next है angular momentum. So angular momentum of a particle about a point. So angular momentum is the rotational analog of linear momentum. ठीक है. So रोटेशनल एनालॉग का मतलब कि जैसे जब हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन देखते हैं तो वहां पे जो लीनियर मोमेंटम का काम है, वही यहाँ पे रोटेशनल जब मोशन होता है तो वहाँ एंगुलर मोमेंटम वही उसका एप्लीकेशन है. तो एज शोन इन फिगर बिलो, कंसिडर अ पार्टिकल ए ऑफ मास m. हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी v, है ना. इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, हैविंग लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू mv. तो इस डायरेक्शन में लेट से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मोमेंटम p इज इक्वल टू mv है. नाउ लेट r इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a. ठीक है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r, राइट, with respect to, so position vector of point a with respect to o, theta is the angle between r and p. This angle between r and p is theta. ना अब p के दो कंपोनेंट होंगे, एक हो गया p cos थीटा इसके अलॉन्ग, और दूसरा हो गया p sin थीटा इसके परपेंडिकुलर. ठीक है, p cos थीटा और p sin थीटा. सो ये p परपेंडिकुलर है, तो p sin थीटा इंटू r कर लेंगे. So component of p responsible for angular motion about o is p sin theta. So p cos theta is not participating in angular motion. So angular momentum of particle A about o is given by L is equal to r p perpendicular, that is r p sin theta.
सो एम वी आर, पी को हम लोग एम वी से रिप्लेस कर लेंगे, तो एम वी है ना, एम वी आर साइन थीटा हो गया। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है ना, तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे भी एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम होगा। Case 1 and 2 implies that when line of momentum passes through O, then torque due to force P about O is always 0. When theta is 90 degree, then in that case, R is perpendicular to P. Now, so RP sin 90 degree, so RP maximum हो गया, तो MVR के बराबर हो गया. So angular momentum of a particle in circular motion about center of circle is always MVR, right? क्योंकि ये MV into R हम लोग करेंगे. Now, in the figure below, line AN extends. अगर हम लोग, ये तो हम लोगों ने P का 2 कंपोनेंट लिया था, अब R का कंपोनेंट अगर लेके समझे, P को हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं और यहाँ पर से ओरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो R परपेंडिकुलर इंटू P, R के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर जो कंपोनेंट होगा R cos थीटा और R परपेंडिकुलर जो है ये हो गया R sin थीटा. सो R sin थीटा को जब हम लोग P से, सो R sin थीटा इज R परपेंडिकुलर and L is equal to PR perpendicular. लीनियर मोमेंटम mv है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे r sin थीटा है, तो mv r sin थीटा हो गया. एंगुलर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो L is equal to r क्रॉस p लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम को. सो L is equal to r क्रॉस p, मतलब अगर एक्स वाई प्लेन में r और p लाई कर रहा है, p इधर लाई कर रहा है, r इधर है, r क्रॉस p करोगे तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग को ये जो L है, ये इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ R एंड P और परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू R एंड P. So R is position vector of point P with respect to O. L is perpendicular to R and L is perpendicular to P. Angular momentum of a particle A about some other point, say B, is RBA cross P. So LAB, angular momentum of A about B, is position vector of A with respect to B, and P is linear momentum of particle A. Now angular momentum in terms of rectangular components. So P जो है हमारा PXI plus PYJ plus PZK, R जो है हमारा XI YJ plus ZK हो गया. Then angular momentum of particle about origin is given as L is equal to R cross P हो जाएगा. इसको हम लोग अगर इसको जैसे वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे IJ के, और ये इसके जो कफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जेड हम लोग ऊपर लिखेंगे और यहाँ के कफिशिएंट्स उसके नीचे लिखेंगे, एंड देन वी कैन फाइंड L as LXI plus LYJ plus LZK. Now, so I into YPZ minus ZPY minus J into XPZ minus ZPX, ठीक है, and plus of K into XPY minus YPX. So, important points about angular momentum. SI unit of angular momentum is kg meter square per second. CGS unit is gram centimeter square per second. Dimension is जो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन है उसमें एक L का डायमेंशन और मल्टीप्लाई कर लेंगे, m1 L square t minus 1 हो जाएगा. Angular momentum is an axial vector whose direction is given by right hand thumb rule. Angular momentum is always specified about a certain point. Angular momentum of same particle about different point may be different. So now L is equal to PR sin theta. So that is P क्या हो गया, MV हो गया, तो MVR sin theta हो जाता है हमारा.
Now, if you see this 76th example, so a particle of mass m is moving along the line y is equal to b and z is equal to 0. With constant speed v, z is equal to 0 मतलब एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ये x हो गया, ये y हो गया, y इज इक्वल टू b के अलोंग, मतलब इस अलोंग, इस डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है v स्पीड से, ये b डिस्टेंस में, particle of mass m. Now state whether the angular momentum of the particle about origin is increasing, decreasing or constant. तो constant speed से move कर रहा है, तो m v और perpendicular distance point o के about हम लोग को निकालना है, about origin. So ये perpendicular distance तो fix है b. So this remains constant. So if you see angular momentum L is equal to mv into b हो जाएगा. So जो y है वो b ये कांस्टेंट रह रहा है ना, ये सारे कांस्टेंट हैं वैल्यूज, मास, वेलोसिटी और ये जो डिस्टेंस b है. So this whole thing remains constant. It will not vary. Next is a particle of mass m is projected with velocity u at an angle theta with the horizontal. ठीक है, तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को फेंके. So particle of mass m is projected with velocity u at an angle theta with the horizontal. Find the angular momentum about the point of projection when it is at the highest point of its trajectory. तो इस पॉइंट पे जब पहुंच गया तब हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है. तो इस पॉइंट पे पर पहुंच गया तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, मतलब h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, राइट. और ये इधर मूव कर रहा है mu से ही होगा क्योंकि यहाँ पे तो बस u cos थीटा, सॉरी mu cos थीटा से मूव कर रहा है. x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज करता नहीं है क्योंकि सेम फोर्स है. तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है इसका, u cos थीटा, u sin थीटा. x कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, mu cos थीटा हो गया जिस स्पीड से ये हाईएस्ट पॉइंट पे मूव कर रहा होगा. सो और mu cos थीटा इंटू h, ये हमें एंगुलर मोमेंटम दे देगा. L इज इक्वल टू mu cos theta into h. So this is mu cos theta into u square sin square theta upon 2j. ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा mu क्यूब sin square theta into cos theta divided by 2j. क्लियर बच्चों?
आगे समझ में? Yes. नेक्स्ट है two small balls A and B each of mass m are attached rigidly to the ends of a light rod of length d. ठीक है, तो हमारे पास दो स्मॉल बॉल्स हैं, so two small balls A and B each of mass m are attached, each of mass m are attached rigidly to ends of a light rod of length d. The structure rotates about the perpendicular bisector of the rod at an angular speed omega. ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है. कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल बॉल एंड ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉल इज, ठीक है, सो ये ओमेगा स्पीड से मूव कर रहा है, राइट. सो बेसिकली एम ओमेगा इज, अब ये v अगर हम लोग को निकालना है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है. ठीक है, जो v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, ठीक है, ये जो r होगा ये क्या हो जाएगा, d बाई टू. सो ओमेगा d बाई टू हो गया v का वैल्यू. ठीक है, ना एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉल जो इंडिविजुअल बॉल है, सो देखो ये v स्पीड से मूव कर रहा है, तो लीनियर मोमेंटम mv है, mv इंटू आर हो गया, मतलब m v जो है ओमेगा d बाई टू इंटू आर क्या हो गया, d बाई टू. सो विच इज इक्वल टू m ओमेगा d स्क्वायर बाई 4 हो गया. सो m ओमेगा d स्क्वायर बाय 4, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉल हो गया. अब आपको कह रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल बॉल एंड ऑफ द सिस्टम. ठीक है, सो ये ब्लॉक दोनों इधर मूव कर रहा है. ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम सो बेसिकली ये L1 प्लस L2 से दोनों को ऐड कर देंगे, m ओमेगा d स्क्वायर बाय 4 प्लस m ओमेगा d स्क्वायर बाय 4, दोनों ऐड करेंगे m ओमेगा d स्क्वायर बाय 2 हो गया.
क्लियर है बच्चों? Next question is, what is the angular momentum of a particle of mass m is equal to 2 kg that is located 15 meter from the origin in the direction 30 degrees south of west? Okay. 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब इधर हो गया, ये एंगल 30 डिग्री हो गया. So what is the angular momentum of the particle of mass m is equal to 2 kg that is located 15 meter? तो यहाँ पे let's say located है ये mass m is equal to 2 kg at a distance, this is 15 meter from the origin in the direction 30 degrees south of west and has a velocity v is equal to 10 meter per second in the direction 30 degree east of north. 30 degree east of north as in इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ. सो हम लोग को बेसिकली ये एम वी का डायरेक्शन है, एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, राइट. अब देखो ये पूरा 15 मीटर है, ये 13 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये पूरा 60 होगा, है ना. सो ये हमारा 30 हो गया, 30 90 और ये 30, ठीक है. अब हम लोग को अगर ये r के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर जो कंपोनेंट होगा दिस इज 15 cos 30 और ये वाला जो कंपोनेंट है 15 sin 30 हो गया. तो 15 sin 30 r परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. और हम लोग को इसका जो mv है ना, p इज इक्वल टू mv है, एंगुलर मोमेंटम l इज इक्वल टू mv इंटू r परपेंडिकुलर, मास है 2 kg, v है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड और r परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है दिस इज इक्वल टू 15 sin 30, 20 into 15 into 1/2, this is 150 kg meter per second. kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंगुलर मोमेंटम है ना, ये हो गया वैल्यू. ठीक है. सो विल स्टॉप हियर. नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और जो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये सब जो कॉन्सेप्ट है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, ठीक है बच्चों. ठीक है, विल स्टॉप हियर देन.